Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? This is your English period. First recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Oh my Lord, increase my knowledge. So beta, today we will do chapter number 2 of your novel The Jungle Book. Open page number 9. We are on page number 9. This is chapter number 2, The Wolf's Council. Mowgli started to live with his parents and brothers and gradually made a place for himself in the cave. आपको याद है ना, चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि एक मैंस कब आ गया था, कहाँ पर आ गया था, वुल्फ फैमिली में। और वुल्फ फादर और मदर ने क्या डिसाइड किया था कि वो हमारे साथ रहेगा, और उस बच्चे को क्या नाम दिया था, मोगली का। Everything in the jungle were according to the law of the jungle, which said when a wolf marries and has cubs, and when the cubs are old enough to stand on their feet, they must be brought to the pack council, which is held once a month at full moon. जंगल में जो लॉ होता है उसके अकॉर्डिंगली जब एक वुल्फ मैरी करता है और उसके कब्स हो जाते हैं और कब्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपने पाँव पर खड़े हो सकते हैं, तो उन्हें पैक काउंसिल में लाना होता है, जो कि महीने में एक दफ़ा होती है जब फुल मून होता है। They had to be brought to the council so that the other wolves could identify them. उन्हें इस वजह से लाया जाता है ताकि जो अदर वुल्फ दूसरे वुल्फ होते हैं वो उनको पहचान जाए। After the council meeting, the cubs are free to go wherever they please. और काउंसिल मीटिंग के बाद जो कब्स जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। So when Mowgli and other cubs were old enough to stand on their feet, जब मौगली और दूसरे कब्स इतने बड़े हो गए कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, Father and Mother Wolf took them to the Council Rock, a hilltop covered with stones and boulders. Father और Mother जो हैं वो उनको एक Council Rock पर रह गए, उस rock पर जहाँ पे वो मीटिंग हुआ करती थी। The council was led by Akela, the great grey lone wolf who sat on his rock, and below him sat 40 odd wolves of different colors and sizes, some veterans in the field who could handle a buck all by themselves. The pack was called C1. जो काउंसिल थी उसको लीड कौन करता था, अकीला, जो कि ग्रे लोन वुल्फ था, जो कि बैठा होता था अपनी रॉक पर और उसके सामने 40 ऑड वुल्फ बैठे होते थे डिफरेंट कलर्स और साइज़ के। उनमें से कुछ वेटरन्स होते थे। वेटरन क्या होते हैं बेटे, वन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस, जो कि बहुत एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ होता है। There was very little talk going on at the rock. In the center of the circle, the cubs, oblivious of the surroundings, were busy playing with each other. वहाँ पे रॉक पे बहुत ही कम बातचीत होती थी और जो सर्कल में बैठे हुए कब्स होते थे वो अपनी सराउंडिंग से ओब्लीवियस माने अनअवेयर, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि हमारे पास हो क्या रहा है, और वो एक दूसरे के साथ खेल रहे होते थे। There, turn the page. Mothers and fathers sat beside them. One by one, the senior wolves were coming up quietly to inspect the cubs and returning to their place with noiseless feet. उन कब्स के फादर मदर उनके साथ बैठे होते थे और एक के बाद एक सीनियर वुल्फ उतरते थे और उनको देखा करते थे और चुपचाप वापस चले जाते थे। At times, the mothers would push their cubs in the center so that their cubs were not left out. उस वक्त जो मदर्स होती थी वो अपने कब्स को सेंटर में पुश कर दिया करती थी ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। At last, father and mother wolf pushed Mowgli, who sat laughing and playing in the center. आखिरकार फादर और मदर वुल्फ ने मौगली को पुश किया, जो कि बैठा हुआ खेल रहा था और हंस रहा था। अकीला let out a loud cry, "You know the law, you know the law. Look well, oh wolves." And the mother also said, "Look well, oh wolves." अकीला ने जब देखा कि एक इंसान का बच्चा भी बैठा हुआ है तो उसने चीख कर कहा कि तुम्हें लॉ का पता है, तुम्हें लॉ का पता है, वुल्फ सारे देखो। और मदर ने भी कहा, ओके वुल्फ, सब इधर देखो। एज द वुल्फ वर बिजी इंस्पेक्टिंग द कब्स, अ रॉर केम अप फ्रॉम बिहाइंड द रॉक्स। जब तमाम वुल्फ बच्चों को देख रही थी तो रॉक्स के पीछे से एक आवाज़ आई, एक रोर की आवाज़ आई। इट वॉज शेरी खान द टाइगर। किसकी आवाज़ आई थी, वो शेरी खान की। He started yelling, वो चीखने लगा, Give the man cub to me, इंसान के बच्चे को मेरे हवाले करो। What has the council to do with the man cub? Council man cub का क्या करेगा? अकीला, the leader of the council, turned a deaf ear to the roar of शेरी खान। अकीला जो उनकी लीडर था, उसने क्या किया कि एक turned a deaf ear किया शेरी खान की आवाज़ पे। Turned a deaf ear का मतलब क्या होता है बेटे, to ignore, to pay no attention to, ठीक है, उसने इग्नोर कर दी शेरी खान की आवाज़। Suddenly there was a chorus of deep growls and a young wolf flung back Sherry Khan's question to Akela.
What have the wolf families to do with the man cub? The law of the jungle says that if there is any dispute regarding the acceptance of any cub in the wolf pack, at least two members of the pack who are not his father and mother have to speak in favor of the cub. तभी वहाँ पे क्या आवाज़ें आने लगी कि क्या करेगी काउंसिल इस फैमिली इसे बच्चे के साथ, क्यों अगर वहाँ पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है। डिस्प्यूट का माने बेटे क्वेरल हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई इख्तिलाफ हो जाता है, तो अगर उसी पैक के दो मेंबर फादर और मदर के अलावा उस कप के हक़ में बोलेंगे, उसकी फेवर में बोलेंगे, तो उसको रखा जाएगा, अदरवाइज़ उसको दे दिया जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली अकीला आस्क्ड, आखिरकार अकीला ने पूछा, हु इज़ रेडी टू स्पीक फॉर द कप, कौन है जो इस बच्चे के हक़ में बोल सके। देयर वॉज नो बडी हु स्पोक फॉर द कप, कोई भी नहीं था जो उस बच्चे के लिए बोला था। मदर वुल्फ स्प्रैंग फॉरवर्ड टू फाइट इफ थिंग्स रीच दैट पॉइंट, मदर वुल्फ तैयार हो गई थी फाइटिंग के लिए अगर नौबत यहाँ तक आए। All of a sudden a grunt was heard. It was Balu, the sleepy brown bear who taught the wolf cubs the laws of the jungle. अचानक ही एक आवाज़ आई, ये बालू था जो क्या था, स्लीपी ब्राउन बेयर था जो वुल्फ कब्स को जंगल के लॉ सिखाता था, यानी कि एक आप समझ लें एक टीचर था वुल्फ के बच्चों का जो उन्हें लॉ सिखाया करता था। बालू कुड कम एंड गो एनीवेयर बिकॉज ही एट ओनली नट्स रूट्स एंड हनी, बालू कहीं भी आ जा सकता था क्योंकि वो सिर्फ क्या खाता था, नट्स खाता था, रूट्स और हनी। ही वॉज द ओनली अदर क्रिएचर हु मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट एट द काउंसिल मीटिंग्स। He rose upon his hindquarters. Hindquarter means बेटे hindquarters, the back part of the animal, the buttocks, ठीक है, the back part of the animal। वो उस पर खड़ा हुआ और कहने लगा, I will speak for the man cub, मैं इस बच्चे के लिए बोलूँगा। There is no harm if he runs with the pack and becomes part of the wolf family. I myself will teach him the law of the jungle। उसने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है और इस पर कोई नुकसान नहीं है अगर ये पैक के दूसरे बच्चों के साथ खेले और वुल्फ फैमिली के साथ रहे, और मैं इसे खुद जंगल के लॉ पढ़ाऊँगा। बालू हैज़ स्पोकन इन सपोर्ट ऑफ द कप। इज़ देयर एनीवन एल्स हु बैक्स द कप, आस्क्ड अकीला। अकीला ने पूछा कि बालू ने बच्चे के हक़ में बोल दिया है, कोई और भी है जो बच्चे के फेवर में बोले। देयर अपॉन अ ब्लैक शेडो फेल अपॉन द सर्कल, उस वक्त एक ब्लैक शेडो सर्कल पे पड़ा। इट वॉज भगीरा द ब्लैक पैंथर, वो भगीरा था द ब्लैक पैंथर। नोबडी डेयर टू क्रॉस हिज पाथ एज ही वॉज अ रेकलेस एज वूंडेड एलिफेंट बट ही हैड अ वॉइस एज सॉफ्ट एज वाइल्ड हनी। वो भगीरा था, वो पैंथर था, और किसी में हिम्मत नहीं थी कि उसके रास्ते में आ सके क्योंकि वो इतना रेकलेस था। रेकलेस माने रैश था, हीडलेस ऑफ डेंजर था, इतना ख़तरनाक था जैसे कि एक ज़ख्मी एलिफेंट, लेकिन उसकी वॉइस जो आवाज़ थी वो इतनी सॉफ्ट थी जैसे कि हनी। Bagheera said softly, "Oh, Akela in the pack, I have no right to speak in your assembly, but the law of the jungle says that if there is any doubt regarding the life of a cub, the life of that cub can be bought at a price and anyone can pay that price." उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली से नहीं हूँ, जाहिर सी बात है वो वुल्फ नहीं था, वो तो पैंथर था ना, टाइगर की फैमिली का था, लेकिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली का नहीं हूँ और मुझे कोई राइट नहीं है कि मैं तुम्हारे बीच में बोलूँ, लेकिन जंगल का लॉ ये बोलता है कि अगर किसी मैन कप पे कोई बात आती है तो उसके लिए कोई बोल सकता है। द यंग वुल्फ एग्रीड दैट द कप कुड बी बॉट एट अ प्राइस, उसने कहा ठीक है, जो तमाम यंग वुल्फ थे उन्होंने एग्री किया कि इसको हमें प्राइस दे के ले लेना चाहिए। भगीरा फर्दर एडिड, इट वुड बी अ शेम टू किल अ नेकेड कप, उसने कहा ये बहुत शर्म की बात होगी कि अगर हम एक नंगे कप को, नेकेड कप को मार डालें। ही विल बी अ बेटर स्पोर्ज व्हेन ही ग्रोज अप। टू बालूज वर्ड आई विल एड अ न्यू बुल killed by me lying half a mile from here. If you agree to accept the man cub in your council, the bull is yours। उसने क्या कहा कि बालू के वर्ड्स को ऐड करते हुए मैं एक बुल ऐड करूँगा जिसे मैंने अभी मारा है और वो यहाँ से हाफ अ माइल पे पड़ा हुआ है, अगर आप एक्सेप्ट करें मैन कब को अपने काउंसिल में तो वो बुल आपका हो गया। Suddenly the sky reverberated with the clamor of other wolves। रिवर्बरेटेड माने बेटे इकोर, शोर मचने लगा। किसका शोर मचने लगा? क्लैमर। क्लैमर के मीनिंग क्या होते हैं? शाउटिंग, अपरोर। किसने शोर मचाने शुरू कर दिए? तमाम वुल्फ्स ने। सम यील्ड दैट द मैन कब वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव द विंटर रेन्स एंड द स्कॉर्चिंग सन। कुछ ये शोर कर रहे थे कि जो मैन कब है वो सर्दियों में जो बारिशें होती हैं और जो गर्मी होती है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा।
Some said a naked cub could not be of any harm to the pack. कुछ कह रहे थे कि एक छोटा सा naked बच्चा है, ये पैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, so you should be accepted to run with the pack. तो इसे हमें accept कर लेना चाहिए. Once again, Bagheera was called to give his word. One by one, the wolves went to look at Mowgli, who was busy playing with pebbles. मोगली बेचारे को तो पता ही नहीं ना कि हो क्या रहा है, वो तो बिजी था अपने पेबल्स के साथ खेलने में. All the wolves except Akela, Bagheera, Balu, father and mother wolf went down the hill for the dead bull. फिर उस डेड बुल को खाने के लिए सब उतर गए सिवाय अकीला, भगीरा, बालू, फादर और मदर के. Shere Khan roared till late in the night as he was angry that the man cub had not been handed over to him. अब शेरी खान को तो बच्चा नहीं मिला ना, तो वो लेट नाइट तक शोर करता रहा, रोड करता रहा. "Eh, roar well," said Bagheera. "The time is going to come and this man cub will make your roar to another tune." भगीरा ने कहा, शोर मचाते रहो, वो वक्त आने वाला है जब ये इंसान का बच्चा तुम्हारे रोर को किसी और ही आवाज़ में चेंज कर देगा. Akela ordered Father Wolf to take Mowgli and to train him according to the laws of the jungle. अकीला जो उसके लीडर था, उसने ऑर्डर किया फादर वुल्फ को कि वो मोगली को लेकर जाए और उसे ट्रेन करे जंगल के लॉस के हिसाब से. Thus Mowgli was accepted in the Wolf's council on Balu's good word and at the cost of the bull. इस तरह से मोगली को वुल्फ काउंसिल ने एक्सेप्ट कर लिया बालूस के गुड वर्ड्स की वजह से और जो ब्लैक पैंथर ने बुल दिया था उसकी कॉस्ट की वजह से. ठीक है बेटा, so till here we have finished our chapter number 2 as well. Now read the novel and enjoy it. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.